हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं अपना जेके एसएसबी का मैराथन। इंपॉर्टेंट है मैराथन को फॉलो करना अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस एंड एग्जामिनर में आस्क, उन्हें देखना ज़रूरी है। आप भी हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें। आप कितने क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं हमें बताते हुए चलें। हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन इज द टर्म आई रेफर्स टू। डियर स्टूडेंट्स, ये टर्म आई क्या रेफर करती है? क्या ये बर्ड, पैरामेट, फिश, प्राइमेट, फिश और रेप्टाइल रेफर करती है? डियर स्टूडेंट्स, द टर्म आई रेफर्स टू द टर्म आई रेफर्स टू primate. What is this primate? Dear students, this primate is a rare. It is a rare nocturnal. It is a rare nocturnal primate. Primate found in where? Found in Madagascar, and it is found only in. It is found only in Madagascar. It is only found in Madagascar, dear students. This primate belongs to lemur family. It belongs to lemur family, ये आपने याद रखना है। Dear students, it's only found in Madagascar, ये आप याद रखेंगे। This II refers to the primate and it belongs to the lemur family. This nocturnal primate is largest. This is the largest nocturnal primate in world. It is largest nocturnal primate in world. In world, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। Dear student, this primate is endangered. This has been classified as endangered species. It has been classified as endangered species. The question was asked about the term II, and now we know the answer of this particular term II क्या रेफर करता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप इसे याद रख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफ नोट्स पे लिखेंगे, साथ में लेम्यूर लिखेंगे। लेम्यूर मीन्स दिस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लेम्यूर, एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इट रेफर्स टू? इट रेफर्स टू प्राइमेट। द क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स इज हियर ऑन यूर स्क्रीन्स। आप देखेंगे और हम भी आपके साथ साथ पढ़ते हुए इसे सॉल्व करने की कोशिश, इस पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। रिलेवेंट डिटेल्स आपको देते हुए चलेंगे। आप आंसर गेस करेंगे अपने एंड पे, या आपने अगर पढ़ाई इसकी की है, आंसर कर पाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर लिखते हुए चलेंगे। द क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? Here are given certain articles as option A, B, C, D. The article 56, 61, 72 and 74. These are the articles given, and हमें बता देना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल इनमें से है which provides the procedure for impeachment of President of India. Dear students, Article 61. Article 61 provides the procedure. It provides the, dear students, procedure for impeachment of President of India. And the only condition where the President of India can be impeached is for the violation of Constitution. If a president violates Constitution of India, then he can be impeached, and the procedure is laid down or provided by the article, or provided under the Article 61 of the Indian Constitution. I hope ये आपको याद रहेगा। Dear students, certain important fact जो आपने याद रखना है, that is president can be only, as I stated, as I told you, कि president can be impeached only for violation of constitution, but the fact is no, not a single, no president of India has been impeached till date. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज आर्टिकल 61। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन नंबर 3, डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इनका आंसर अपने एंड पे भी देखेंगे। द क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बिस इज लोकेटेड एट। व्हाट इज दिस बिस, डियर स्टूडेंट्स? इट इज एन एक्रोनिम एंड इट स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। Bureau of Indian Standards. Now the acronym has been standard. It means this is the Bureau of Indian Standards. So
the question is where it is located, which means India's national standards body कहाँ पे located है हमने बता देनी है. Dear students, it's located in New Delhi. One important fact, answer to our question, done, we are done. But the additional points to remember, certain facts to remember are: one, this BIS was established. This BIS was established under the BIS Act 1986. 1986. BIS Act 1986 of India. Later, it was amended in the year BIS Act 2016. So these two acts, first, this BIS was established under the Act 1986, later 2016 में कुछ modifications आई है. What are the functions of this BIS, dear students? Functions of Bureau of India Standards are प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं उनकी सर्टिफिकेशन करना, उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना. प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस. याद रहेगा, आई होप याद रहेगा, रखना पड़ेगा. द सेकेंड इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स इज हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड जो होता है, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड, ये भी बिस का ही काम है. दिस फंक्शन लाइज विद इज इंटरेस्टेड विद द बिस. क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इंटरेस्टेड. So dear students, क्या याद रखेंगे? The headquarter of this BIS, Bureau of Indian Standards, is at New Delhi, right? It was established under the Act 1986 and later amended in the year 2016. Dear students, ministry is important. Ministry, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये BIS, Bureau of Indian Standards आ जाता है? ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है. कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आ जाता है. आईएसआई मार्क जो इशू करता है वो बिस आपका करता है. आईएसआई मार्क जो इशू करता है वो इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करता है. दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट दिस क्वेश्चन. द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दिस. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. द नंबर, डियर स्टूडेंट्स, इज विच रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. Here is a river. There are the certain options given, A, B, C, D. These are nothing but the names of rivers. हमें इनमें से बता देना कौन सा ऐसा river है which cuts Tropic of Cancer twice. Dear students, the river we are talking about is Mahi River. Mahi River cuts Tropic of Cancer twice. It cuts the Tropic of Cancer twice. Dear students, why? जो path है, course है, the course of this Mahi River is zigzag. It is zigzag. जो course इसका zigzag है, that is why it crosses the Tropic of Cancer twice. What is this is important, and the answer to your question is this option. Mahi is the river which cuts the Tropic of Cancer twice is important for you and answer to this question. But certain other details important for your examination are: one, what origin क्या है, कहाँ से ये originate होता है Mahi River. Dear students, it originates from Vindhya River. It originates from Vindhya range. कहाँ पे है आपका Vindhya range? ये मध्य प्रदेश में है. Where it is in the मध्य प्रदेश. ये पॉइंट याद रखेंगे फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डियर स्टूडेंट्स, ये ड्रेन कहाँ होता है माही रिवर? डियर स्टूडेंट्स, इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी में ड्रेन होता है. गल्फ ऑफ कंबत याद रखेंगे एग्जामिनर. गल्फ ऑफ कंबत दे, अरबियन सी दे, ड्रेन तो ये वही होता है, याद रखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर. इट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर. ये पॉइंट भी एग्जाम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा. एंड द लेंथ ऑफ दिस रिवर, माही रिवर, डियर स्टूडेंट्स, इज 583 किलोमीटर्स is the total length of this river called Mahi River. Coming to the question next number 5. The number 5, dear students, is the Treaty of Yandabo was signed in. Treaty of Yandabo कब साइन हुई थी ये हमने बता देनी है. Dear students, the years are given as option A, B, C and D. The years are given 1824, 1826, 1832 and 1840. The Treaty of Yandabo, it was signed in the year 1826. The answer to your question is 1826. I think we are done with this question. But certain details important for your examination are: one, the Treaty of Yandabo
it ended the first Anglo-Burmese war. First Anglo-Burmese war, this treaty. And this war was between the year 1824 to 1826. 1824 से 1826 तक ये जंग चली between English and Burma, and the end of war, this treaty of Yandabo marked the end of this war, and this treaty was signed in the year 1826. Dear students, this treaty was signed between East India Company and Burma. East India Company and Burma. This is again an important point, जो आपको याद रखना पड़ेगा. What were the consequences of this treaty, or after the war this treaty was signed? What were the consequences? जो असम था, असम हिस्सा बना किसका? ब्रिटिश का. It became the part of British Empire. मणिपुर जो है, मणिपुर recognized independent. It was recognized an independent state. मणिपुर किस ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ यंडाबो से. और असम ब्रिटिश के साथ मर्ज हो गया. ठीक है, मर्ज नॉट मर्ज, इट केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आया. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग टू remember about this treaty of Yandabo, dear students, is that British influence expanded in the North India. नॉर्थ इंडिया में किस ट्रीटी की वजह से ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा है? दिस वाज दिस ट्रीटी ऑफ यंडाबो. यह आपने याद रखना है. टू बी स्पेसिफिक, 24 फरवरी 1826 को ये ट्रीटी साइन हुई थी. And it opened the doors for British expansion in Northeast. These are the certain details जो आपको याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, एक लाइन में आप याद रखेंगे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, उसके बाद नोट पे एरो लगाएंगे ट्रीटी ऑफ यंडाबो, उसके बाद 1826 आप लिख के रखेंगे, इतना काफ़ी होगा. हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. द नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज. क्वेश्चन है कि कौन सा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है यूटी में? क्या ये सियाचिन है, मकॉय है, कोलाई है या ड्रैंग है? दीज आर द नेम्स ऑफ ग्लेशियर्स. हमने बता देना है कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में नीचे ऑप्शंस में से कौन है. डियर स्टूडेंट्स, सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर. और एग्जामिनर आपको ऐसे दे दे, इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द Karakoram range. It is the longest glacier in Karakoram range, and it is the second longest glacier outside polar region, and it is the second longest glacier outside polar region. So 2 points. Answer to our question is Siachen Glacier. It is the longest glacier in Jammu and Kashmir UT, and second longest glacier outside polar region. Dear students, what is the length? What is the length of this glacier? The length of this glacier is 76 kilometers. याद रहेगा, आई होप ये याद रहना चाहिए. Dear students, world's highest battlefield भी ये है. ठीक है. So an important thing to remember for your examination, Siachen Glacier is source of Nubra River. It is source of Nubra River, जो आपने याद रखना है. So coming to the question number next. The question number next, dear students, is Niti Aayog was constituted in the year 14, 15, 16 or 17. Niti Aayog was constituted in the year 2015, dear students. आंसर हमारा हो गया, हम आगे बढ़ सकते हैं. But certain details are important, dear students. Niti Aayog replaced something. क्या replace किया है? Niti Aayog replaced Planning Commission. On, to be specific, on 1st January 2015. On 1st January 2015 नीति आयोग पहले 1 जनवरी 2015 को आया है.
ठीक है, एंड इसने रिप्लेस किसको किया है? प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति NITI, इट इज एन एक्रोनिम एंड स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? इट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं वही चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। एंड फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के? ये अरविंद साहब थे। नाम याद आप रखेंगे, अरविंद पनगरिया। Arvind Panagiria was the first vice chairman of Niti Aayog. So, coming to the question number 8. The number 8, dear students, the term demographic dividend was coined by. जो ये term है demographic dividend, coin किन्होंने की है ये हमने बता देना है, ठीक है? Who coined this term demographic dividend? इसका मतलब भी क्या है वो भी आपको बता देते हैं। Dear students, demographic dividend term किन्होंने coin की है पहले आपको ये बता देते हैं। The person David Bloom was the person who coined this term demographic dividend, राइट? हमारा आंसर तो क्वेश्चन का हो गया है, ठीक है। सो what is this demographic dividend? Dear students, it refers to the economic growth. It refers to economic growth resulting. It refers to economic growth resulting from a large share of working age population. What does this mean, dear students? जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, और ग्रो इसलिए हो रही हो क्योंकि आपकी इकोनॉमी में जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है वो उन लोगों का है जिनकी एज वर्किंग एज में है। द पीपल दोज जिन लोगों की एज वर्किंग एज होती है उस कैटेगरी में उन्हें डालते हैं। अगर वो ज़्यादा है, उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, दोज पीपल हु आर इन द वर्किंग एज ग्रुप, उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, उनके कंट्रीब्यूशन से इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ती है, दैट इज़ नथिंग बट डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो व्हाट इज़ दिस देन? वर्किंग एज क्या है? इट इज़ अबव 15 और 15 to 59. The people lying within this age bracket are called the working age population. And if this working age population is large, अगर ये इनकी परसेंटेज ज़्यादा है और उनकी कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, then this is nothing but economic dividend, ठीक है? Which means the formula of demographic dividend is when you have more workers, which means this age group has more share, plus you have fewer dependents, it results in higher productivity. It results in the higher productivity, which means increased growth rate. This is nothing but demographic dividend, dear students. And India, of course, we all know, has one of the world's youngest population, which means we have the youngest population falling in this age bracket 15 to 49. If they are put to use, if this age group is capitalized properly, avenues provided, then they can immensely contribute to our economic growth, then which means we can have the demographic dividend in our country. So according to David Bloom, demographic dividend is economic growth resulting from a large share of working population. Coming to the question number 9. The question number 9, dear students, is which lake is known as the Jewel in the Crown of Kashmir? There is a lake जिसे जेविल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं। क्या वो डल लेक है, वोलर लेक है, नगीन है या मानसबल है, वो हमने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डल लेक. Dal Lake is the lake which is known as Jewel in the Crown of Kashmir.
ठीक है, कहाँ पे ये लोकेटेड है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कहाँ पे ये लोकेटेड है मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। द एरिया दिस लेक कवर्स डियर स्टूडेंट्स इज़ 18 स्क्वायर किलोमीटर्स। 18 स्क्वायर किलोमीटर्स इंपॉर्टेंट है, तो रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट मी हाईलाइट आंसर फॉर यू, इट्स द लेक। Coming to the question number next, number 10. The number 10 is which schedule contains the list of languages recognized by the constitution? कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? इज दिस द सिक्स्थ शेड्यूल, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ शेड्यूल? डियर स्टूडेंट्स, एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, eighth schedule of the constitution contains the list that recognize the languages which that consists of the list of languages recognized by the constitution. Eighth schedule contains officially recognized languages of India, and there are 22 languages recognized by the constitution of India. Originally there were 14 languages. Originally there were 14 languages in the year 1950. Later certain languages were added, and recent additions in the year 2003, recent additions इस लिस्ट में हुए हैं। उनमें से कौन कौन सी लैंग्वेज है? बोडो इज़ वन लैंग्वेज, डोगरी इज़ अनदर लैंग्वेज विच वॉज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, मैथाली इज़ अनदर लैंग्वेज जो इस लिस्ट में इंक्लूड हुई है, संताली इज़ अनदर लैंग्वेज विच वॉज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। एंड आपने हमें बता देना है ये बोडो, डोगरी, मैथाली और संताली कहाँ, किस किस स्टेट, किस किस जगह की लैंग्वेज है, ये आपने हमें बता देनी है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट्स नंबर 11। द क्वेश्चन इज फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन, पहला सेंसस कब हुआ था? इट वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1872। ठीक है, आंसर हमारा होगा द फर्स्ट अटेम्प्ट एट द सेंसस वॉज कंडक्टेड अंडर लॉर्ड मायो। ये आपने याद रखना है, पहला अटेम्प्ट जो सेंसस करने का हिंदुस्तान में हुआ, इट वॉज कंडक्टेड अंडर लॉर्ड मायो इन द ईयर 1872। इट वॉज ओबियसली नॉन सिंक्रोनस सेंसस। फर्स्ट जो रेगुलर सेंसस हुआ है इट वॉज नॉन सिंक्रोनस। एग्जाम आपको कभी कभार ये भी दे देता है, इट वॉज नॉन सिंक्रोनस सेंसस, राइट। जो पहला रेगुलर सेंसस हुआ है, फर्स्ट रेगुलर सेंसस हुआ हिंदुस्तान में, कब हुआ? 1881 अंडर लॉर्ड रिपन, ये आपने याद रखना है। दिस आर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने याद रखने पड़ेंगे आपके एग्जाम के लिए। हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेशन फ्लड किसके साथ एसोसिएटेड है? इज दिस एसोसिएटेड विद व्हीट, मिल्क, फिशरीज और ऑयल सीड्स? डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद मिल्क। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे, इट इज एसोसिएटेड विद मिल्क। वन, दिस ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च्ड, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च्ड इंडियाज वाइट रेवोल्यूशन। जब भी आपका मिल्क जिक्र में आपके सामने आ जाता हो, मिल्क का जिक्र आता हो, वाइट रेवोल्यूशन आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद मिल्क इज आंसर टू योर क्वेश्चन। इट इज दिस ऑपरेशन फ्लड लॉन्च्ड इंडियाज वाइट रेवोल्यूशन, इट लॉन्च्ड इंडियाज वाइट रेवोल्यूशन। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन? आर्किटेक्ट एग्जामिनर ये भी आपको दे देता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन was the architect of this white revolution in India. This white revolution started in the year 1970. The year is again important from your exam point of view. And the achievement of this revolution, the efforts of Dr. Varghese and others, it was that India became world's largest milk producer. Coming to the question number next. Number 13. Which state separates Asia from North America? There is a state and we know what is state. हमने बेसिक जियोग्राफी पढ़ी है, स्टेट क्या होती है हमने पढ़ी है, उस पर डिस्कशन पर नहीं जाएंगे। हमें यहाँ बता देना कौन सी ऐसी स्टेट है, कौन सी वो स्टेट है जो एशिया को नॉर्थ अमेरिका के से सेपरेट करती है, वो हमने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, बेरिंग स्टेट is a state that separates Asia from North America. The Bering Strait lies between Russia and
This strait lies between Russia and Alaska. Alaska means we know it is in the USA, right? Dear students, this strait is 85 kilometers wide. The width of strait, this Bering Strait, is 85 kilometers. Important to remember from your exam point of view. Coming to the number next, dear students. The number next is question number 14. नंबर 14 ये आधा इधर आधा उधर आ चुका है, ठीक है. Kalhana's Raj Tarangni was completed in the year. Kalhana's Raj Tarangni, it was, dear students, completed in the year 1148 AD. 1148 AD. Answer to your question. Raj Tarangni, it was written by Kalhana. Kalhana's Raj Tarangni यहाँ भी given है तो कल्हाना ने लिखी है. It is the most important historical chronicle of Kashmir. ये आपने याद रखना है. Important historical chronicle of Kashmir. Chronicle of Kashmir. ये पॉइंट याद रहेगा. Dear students, this Raj Tarangni, what does this mean? एग्जामिनर आपको ये दे चुका है, JKSS भी आपको ये दे चुका है कि ये राज तरंगनी से क्या मुराद है, इसका मतलब क्या है. राज तरंगनी, dear students, means river of kings. River of kings. ये this is the meaning of the term Raj Tarangni. Coming to the number next, dear students, question number 15. Adjust this for you. The largest coral reef system in the world is. Largest coral reef system के बारे में हमसे पूछा है तो हम बता देंगे. largest coral reef in the world, dear students, Great Barriers Reef का नाम आपने सुना है, यहीं तो कहीं होगा. ये है आपका Great Barriers Reef. पहले तो ये आप याद रखेंगे, कुछ डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है. Great Barriers Reef, dear students, is the largest coral relief system in the world. याद रहेगा. डियर स्टूडेंट्स, लोकेशन कहाँ है इसकी, हमें लोकेशन भी याद होनी चाहिए. इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. पॉइंट याद रहेगा, ठीक है. रह गया याद सर, तो ऑस्ट्रेलिया में है ये. इट इज़ दिस ग्रीन बैरियर्स, दिस ग्रीन बैरियर रिलीफ. It is the coral relief system, largest coral reef system in the world. Name is Great Barrier Reef, located in Australia. याद रहेगा. Dear students, it is the largest living structure on Earth. It is largest living structure on Earth. ये पॉइंट याद रहेगा, एग्जामिनर ऐसे भी दे दे आपको. सो अगर ये लार्जेस्ट है तो हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस coral reef system. It is 2300 kilometers. 2300 kilometers. Again, the important to remember is it is UNESCO site, UNESCO World Heritage Site. ये भी एग्जामिनर देगा तो हमें पता है. कब बनी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इन द ईयर 1981. इन द ईयर 1981, dear students. So coming to the number next. The number next, dear students, is number 16. Which fundamental right was called the heart and soul of the Constitution? कोई एक fundamental right तो है, dear students. कोई एक fundamental right है जिसे heart and soul of the Constitution कहते हैं. Is this Article 14, 19, 21 or 32? Dear students, it is Article 32 of the Indian Constitution, which has been called the heart and soul of the Indian Constitution. Dr. Bhim Rao Ambedkar. Dr. Saab Bhim Rao Ambedkar called Article 32. The heart and soul of the Constitution. Why? Because it guarantees. This article guarantees the right to constitutional remedies. This article guarantees the right to constitutional remedies. I hope we have studied these articles. मुझे ज़्यादा इस पर डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है. Right to constitutional remedies are guaranteed under this article 32, and this has been called heart and soul of the Indian Constitution by Dr. Bhim Rao Ambedkar.
Coming to the question number next, dear students. The number next is number 17. The river Jhelum originates from. रिवर झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हमें इसमें मगजमारी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वेरीनाग से ओरिजिनेट होता है. Dear students, it originates from Verinag Spring, which is obviously in अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. कोई अनंतनाग से है तो हमें बता दीजिए नीचे लिख के कि हम अनंतनाग से हम वेरीनाग गए हैं. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम? एग्जामिनर आपको ये भी दे चुका है, JKSS भी आपको ये दे चुका है कि व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ दिस वेरीनाग. इट्स एंशिएंट नेम इज वेतस्ता. एग्जामिनर दे चुका है, दया खा के फिर भी दे दे तो बहुत अच्छी बात है. So Vetsta was the ancient name of Verinag, and length of this particular Nag is 725 kilometers. It is 725 kilometers. चलते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे. The number 18, dear students, is which Mughal emperor visited Kashmir most frequently? सभी तो आए नहीं, जो आए तो गए, लेकिन ऐसा कोई एम्परर हुआ है जो फ्रिक्वेंटली आया है. बाबर है, अकबर है, जहांगीर, औरंगज़ेब है. जहांगीर साहब हैं. इज़ द मुगल एम्परर हु विजिटेड कश्मीर मोस्ट फ्रिक्वेंटली. जहांगीर वॉज डीपली फैसिनेटेड बाय द कश्मीर ब्यूटी एंड विजिटेड सेवरल टाइम्स. वी ऑल नो दिस, अगर हमने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है. द स्टूडेंट्स, ये वही जहांगीर है, एम्परर जहांगीर, जिन्होंने कहा है गर फिरदोस्त बर्रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त. सो वी नो, एंड ये हमारी ज़बानों पर रहता है. इंपॉर्टेंट हमारे लिए डियर स्टूडेंट्स ये है, द मुगल गार्डन जो डेवलप किया गया है, दिस वाज डेवलप्ड बाय जहांगीर, एंड देयर आर सर्टन अदर गार्डन्स जिनका आपने नाम बता देना है कौन कौन से जहांगीर साहब ने गार्डन बनाए हैं. एंड जहांगीर डाइड नियर कश्मीर रूट इन द 1627. एग्जामिनर शायद दे ना दे, ये क्वेश्चन कहना ज़रूरी है. जब भी जहांगीर साहब का जिक्र आता है तब बहुत सारी चीज़ें कश्मीर के बारे में याद आती हैं. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19. हमें यादों में नहीं खोना है, एग्जाम पास करना है, तो क्वेश्चन इस देख लेना है. दी हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज़ एट. सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क इज़ एन एक्रोनिम डियर स्टूडेंट्स. फुल फॉर्म भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि मैं ही बता दूँ, वो क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे. पहले हेडक्वार्टर की बात करते हैं. हेडक्वार्टर ऑफ सार्क डियर स्टूडेंट्स इज़ एट काठमांडू. ये काठमांडू में है, ज़्यादा इसमें करने की मगजमारी करने की बात नहीं है. दिस सार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1985. इन द ईयर 1985. सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन. आई होप आपके टिप्स पे होना चाहिए. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम सार्क. हेडक्वार्टर काठमांडू. बनी कब? 1984 में. डियर स्टूडेंट्स, मेंबर कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है. मेंबर्स ऑफ सार्क, एक तो अपना इंडिया है, दूसरा पाकिस्तान है, नेपाल है, ठीक है, भूटान है. मैं लिखता जाऊंगा, आप बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका, Maldives and Afghanistan. ठीक है. These are the member countries of SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, established in the year 1985. हेडक्वार्टर काठमांडू. काठमांडू ऑब्वियसली नेपाल, इसमें इसका हेडक्वार्टर है, ये आपने याद रख लेना. कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स. द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो तो यहाँ से यहाँ उतर गया, ठीक है. द क्वेश्चन इज विच पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द लद्दाख. सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके लिए आसान सा जवाब आपको पता होगा, आई होप. जोजिला पास इज द पास विच कनेक्ट्स कश्मीर विद द लद्दाख वैली, ठीक है. और एल्टीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. एल्टीट्यूड क्या है इसका? इट इज़ 3528 मीटर एल्टीट्यूड ऑफ दिस पास. जोजिला पास इज अ स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास कनेक्टिंग श्रीनगर एंड लेह, ये हमें पता है, ठीक है. सो कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट इज